Assalamu alaikum. So I'll start the presentation for SSC exams. So SSC conducts four exams. One is for diploma engineering student. Another is for 12th students who has passed to class 12. That is SSC CHSL. And another is for a graduate student. We call it SSC CPO, Central Police Organization. And for SSC CPO conducts another exam for constable also. The eligibility requirement for constable is 12th pass. And for graduate students, they conduct another exam which is called SSC CGL, Combined Graduate Level. CGL means Combined Graduate Level. So there are total four exams which are conducted by SSC. So here we will not discuss SSC JE, which is for diploma engineering students. In SSC CGL, there are total 30 posts like UPSC, like audit officer in CAG, and like in all the ministries, they recruit officers for Group B and Group C. But recently, last year, there was special notification from the central government, and they gave permission to SSC to conduct the exam for Group A also. That is gazetted officer post for the first time in SSC history. So there are various posts for which SSC conducts exam like in income tax, excise and customs, preventive officer, examiner, assistant section officer in IB, sub inspector in CBI, narcotics, CSS like Central Secretariat, assistant section officer in AFHQ, Air Force Headquarters. So there are total around 30 posts for which SSC conducts exam. There are total posts in SSC CGL for which SSC conducts exam, and they are divided into two parts: field job and office job or desk job. We call it desk job. So field job are like income tax inspector, CBI, and various other posts. And desk job are like section officer in various ministries. So we have already discussed like there are total 30 posts and for various ministries. So now we will come to the promotional aspect and various ministries. So I'll cover only few departments because like this session will become lengthy. So these are various posts like assistant officer in CAG. This is gazetted post. Assistant officer in CAG. Assistant section officer in Ministry of External Affairs. Assistant enforcement officer in Directorate of Enforcement. Inspector of Income Tax, Customs and Excise. Now, if a person or student is recruited through SSC, then he can reach up to deputy secretary level. There are very rare chance that he or she can reach up to director level, but still deputy secretary is very like good post. So there are very good chances of promotion if a student is selected through SSC. So that's why this is also called mini IAS or mini UPSC. If a student is recruited in CBI, then first he or she become sub inspector, then inspector, then deputy superintendent, then superintendent. So there are very rare chances that he or she can become senior superintendent. But in some exceptional cases, if a candidate has very good record, then he or she can become senior superintendent also. So there are very good promotion chances in CBI as well. So this is the hierarchy for enforcement directorate. Like first, joinee becomes assistant enforcement officer. Then after getting promotion, they become enforcement officer, then assistant director,
then deputy director. And if a candidate has very good track record, exceptional performance, then they can become director also in ED. Same is the case with income tax inspector. So this is the list for like promotion in income tax department. Income tax inspector, then income tax officer, then assistant commissioner, then deputy commissioner, then commissioner. So now the question arises, who are eligible to apply? So any graduate, any means like whether it is from IGNOU or from open, from distant mode or from regular, from BTech, whether it is BTech or science graduate, any student can apply in SSC CGL exam. CGL means combined graduate level. So this is for graduate students. And now question is, what is the age limit? So the age limit for general student is 18 to 30 years. Minimum is 18 and maximum is 30 years as on 1st January when the notification is announced for the that year. Now some students ask like, what is the relaxation in age? So this is the list for various categories. Student has relaxation in the age. So please go through this list. For OBC we have 3 years. I will not read this completely, so I'll skip the slide. Is there any percentage criteria to apply? No, there is no percentage criteria. Just minimum passing marks are required in the graduation. So if a student is in or her final year, so they can also apply in the CGL, SSC CGL exam. Now this is the main point. Like how many vacancies are announced every year? Like in state exam or UPSC, since number of vacancies are decreasing every year, so SSC CGL is a good chance for those students, so they can crack this exam very easily. आपको सिर्फ अगर आपका 10th क्लास तक का बेसिक मैथमेटिक्स और इंग्लिश जो CBSE लेवल का जो पैटर्न होता है उसका बहुत अच्छा है, तो आप अगर सही गाइडेंस है, आपको सही बुक्स आपको पता चल जाए कि मुझे सिर्फ ये बुक्स पढ़नी है, इनके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना है, तो आप 10 मंथ्स में या मैक्सिमम 12 मंथ्स के अंदर आप अच्छी तैयारी करके आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं. और इसमें जो वैकेंसीज आती हैं 8,000 से 12,000 तक हर साल आती हैं, वेरी करती हैं. लेकिन गुड पार्ट इज दैट वैकेंसीज आर अनाउंस्ड एवरी ईयर एंड दे आर इन थाउजेंड्स. So this is the like yearly wise vacancies. In 2012, around 16,119 vacancies were announced. So this is the list जो हर साल vacancies आई थी SSC CGL में. You can go through this list. Now the most important part is syllabus and exam pattern. तो जैसे मैंने बोला था कि पहले इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसका सिलेबस जो होता है वो स्टैटिक होता है. अनलाइक यूपीएससी में जो सिलेबस होता है बहुत ज्यादा डायनामिक होता है. एसएससी सीजीएल में क्या है कि आप सिलेबस को जो है आप एक लेमन लैंग्वेज में आप आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं. आपको पता है कि सिर्फ 10 तक का सिलेबस आना है, आपको मैथ्स पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है और 50 नंबर की रीजनिंग आती है, 50 नंबर की जीएस आती है. टोटल सीजीएल का जो पेपर होता है टोटल टीयर 1 टीयर 2 और जो टीयर 3 होता है टोटल 700 मार्क्स का होता है. 700 मार्क्स. उस 700 मार्क्स में सिर्फ 50 मार्क्स का आपको जीएस आता है, तो बचा 650 मार्क्स. 650 में 50 हो गया रीजनिंग, अब बचा 600. तो 600 मार्क्स आपका मैथ्स और इंग्लिश. वो मैथ्स भी सिर्फ आपका 10 तक और इंग्लिश भी सिर्फ 10 तक. अगर सपोज कोई स्टूडेंट किसी वजह से 11th में किसी घर की मजबूरी या कोई और वट एवर रीजन किसी से नहीं पढ़ पाया या अच्छे मार्क्स नहीं आए या कोई, तो और उसने 10th में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं और उसके बेसिक्स एकदम क्लियर हैं, तो वो स्टूडेंट भी आसानी से ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं. आपको आप सोचिए कि 700 इसका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या है, 10th और 12th? नहीं सर, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन तो ग्रेजुएशन है, लेकिन सिलेबस सिर्फ 10 तक है. अच्छा, सिलेबस सिर्फ 10 है.
आप कह रहे हैं हाँ कि अगर किसी बच्चे ने 10वीं के बाद नहीं पढ़ा तो वो भी कर सकता है, तो वो कैसे करेगा जब ग्रेजुएट ही नहीं है? नहीं, अगर मेरा नहीं पढ़ा था मतलब है कि अगर किसी वजह से वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाया, जस्ट पास होता गया, ओके, फाइन। तो इसमें जो सिलेबस है वो सिर्फ 10th तक आता है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो ग्रेजुएशन चाहिए। अब आते हैं पैटर्न पे। टीयर 1 में जो है टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 मैथ्स, 25 जीएस, 25 रीजनिंग, तो टोटल जो है 200 मार्क्स का होता है। और उसके बाद टीयर 2 होता है। टीयर 2 में एक पेपर 1 मैथ्स का होगा, एक दूसरा पेपर 2 जो होगा इंग्लिश का होगा। मैथ्स में 100 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश में 200 क्वेश्चन होंगे, और ये टोटल जो होगा 200 प्लस 200 400 मार्क्स का होगा। और सिलेबस वही सिर्फ 10 तक, लेकिन जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट है वो चाहिए ग्रेजुएशन। इसलिए मैंने बोला था पहले कि मतलब ये इसका जो सिलेबस रहता होता है वो बहुत स्टैटिक होता है। यूपीएससी में जो है आप जो सिलेबस है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, डायनेमिक है। तो इसलिए यूपीएससी के मुकाबले एसएससी सीजीएल एग्जाम क्रैक करना फिर भी बहुत आसान होता है, अगर स्टूडेंट के 10 तक के जो कंसेप्ट हैं मैथ्स और इंग्लिश के वो बहुत क्लियर हैं। तीसरा इसका जो पेपर होता है वो उसको बोलते हैं पेन एंड पेपर मोड। मतलब उसमें एक ऐसे आता है जो कोई भी करंट टॉपिक होगा, जैसे स्वच्छ भारत अभियान या और बहुत सारे टॉपिक होते हैं उनपे, और एक लेटर राइटिंग आता है। और अगर ये सीबीएसई का इंग्लिश का सिलेबस है, आपको मालूम होगा, तो आप अगर आपका सीबीएसई बोर्ड है और आईसीएसई बोर्ड है, आपके पास एडवांटेज है। लेकिन अगर कोई यूपी बोर्ड से है या कोई हिंदी मीडियम बोर्ड से है, तो वो ये ना सोचे कि मैं कैसे करूंगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे लिखने की, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं ऐसे, जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश में लिखना है, या जो लेटर राइटिंग है वो हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं। बस आपको पैटर्न का पता होना चाहिए, क्या समरी लिखनी है, क्या बीच में कौन सा पार्ट आएगा। तो उसके लिए गाइडेंस आपको आप अपने प्रोफेसर से या अपने क्लास टीचर से या जो भी आपके मेंटोर हैं, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। बट अगेन दिस एग्जाम इज वेरी इजी एज कम्पेयर टू यूपीएससी। नाउ इन सम जॉब्स you need to appear for tier 4 also. इन tier 4 में क्या होता है कि आपको सिर्फ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी चेक की जाती है, जैसे बेसिक नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, एक्सेल के बेसिक चीजें, कि आपको कंप्यूटर पे डेस्क जॉब में अगर आपको काम करना है तो आपको एक्सेल यूज करना आना चाहिए, एमएस वर्ड यूज आना चाहिए। ये भी बहुत इजी होता है, क्वालिफाइंग होता है, तो आप जो है इसको आसानी से इसको पास कर सकते हैं। अभी लास्ट टू लास्ट ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीजीएल को, एसएससी को जो है ये परमिशन दी थी, स्पेशल परमिशन पहली बार, कि वो गेजेटेड पोस्ट के लिए भी एग्जाम कंडक्ट करें। इससे पहले जो गेजेटेड पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट करती थी वो यूपीएससी बॉडी करती थी, तो उसके लिए एक अलग से पेपर होता है जो जिसको हम असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बोलते हैं, AAO बोलते हैं। तो उसके लिए उसमें कुछ फिनेंस और अकाउंट्स का पोर्शन आता है, कुछ इकोनॉमिक्स का और गवर्नेंस का पोर्शन आता है। तो वो जो पार्ट ए पार्ट बी हम उसको बोलते हैं। पार्ट ए में जो है वो 80 मार्क्स का होता है और पार्ट बी में जो है 120 मार्क्स का होता है। आगे ना अब इसमें कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट के क्वेश्चन आते हैं कि सर मैंने बीटेक किया है तो मुझे फाइनेंस और अकाउंट्स बिल्कुल नहीं आती, मैं कैसे क्वालिफाई करूंगा, या मुझे इकोनॉमिक्स। अगेन इसमें जो फाइनेंस और अकाउंट्स होता है वो बहुत बेसिक लेवल का होता है। अगर बीटेक स्टूडेंट भी या बीएससी या साइंस ग्रेजुएट स्टूडेंट भी इसको करेंगे तो इसको तो उनको बहुत आसानी से वो इसको क्लियर कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। हाँ, ये ऑब्वियस है कि जिन्होंने फाइनेंस ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ी है या अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स, उनको ऑब्वियसली एडवांटेज इसमें मिलेगा। बट अगेन जो नॉन फाइनेंस नॉन अकाउंट बैकग्राउंड से हैं, नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं, उन स्टूडेंट वो स्टूडेंट भी काफी इसमें क्वालिफाई करते हैं। तो अगेन ये डिपेंड करता है आपके डेडिकेशन पे, आपके हार्डवर्क पे, और आपको सही गाइडेंस मिल रही है, आप सही बुक रेफर कर रहे हैं कि नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक इन विच लैंग्वेज दिस एसएससी सीजीएल एग्जाम इज कंडक्टेड। तो इंग्लिश और हिंदी। तो अगेन जो हिंदी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनकी अक्सर ये शिकायत रहती है कि सर हमारी इंग्लिश कमजोर है और हम कैसे इसकी तैयारी करें। तो आप जो है ये पेपर हिंदी में दे सकते हैं। ये वाला मैंने ऑलरेडी आई हैव कवर्ड डेस्क जॉब एंड फील्ड जॉब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, शुड आई प्रिपेयर फॉर एसएससी एग्जाम? यस,
you should prepare for SSC CGL exam also. तो बिकॉज अभी जो है एक सीसैट का पेपर भी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उसमें जो है जो उसका पैटर्न है और सीजीएल में जो क्वेश्चंस आते हैं काफी, दोनों काफी सिमिलर हैं। तो आप जो है अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की, तो आपकी सीसैट की उसकी भी तैयारी आराम से हो जाएगी। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो है सीजीएल में, एसएससी सीजीएल में, वो अराउंड 8,000 से 12,000 के बीच में वेरी करती हैं हर साल। तो इसमें काफी सारी वैकेंसीज हैं, काफी चांसेस हैं सिलेक्शन होने का। बट अगेन इन यूपीएससी द नंबर ऑफ वैकेंसीज आर डिक्लाइनिंग एवरी ईयर। उम्मीद है कि आगे बढ़ें ताकि और ज्यादा चांसेस हों। बट अगेन आप अगर इसमें एसएससी सीजीएल क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप उसके थ्रू भी गवर्नमेंट जॉब, अच्छी गवर्नमेंट जॉब ऑफिसर लेवल की, गेजेटेड लेवल की ले सकते हैं। नाउ कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर कितना टाइम चाहिए इसकी तैयारी के लिए, और कितना इसमें वेदर एग्जॉस्टिव स्टडी चाहिए या इंटेंसिव स्टडी चाहिए। आप 5-6 घंटे रोज पढ़ रहे हैं डेडिकेटेडली, तो 6 मंथ जो है सफिशिएंट है। लेकिन ये उसके लिए है जिसके मैथ्स और इंग्लिश 10th क्लास तक का बेसिक्स बहुत अच्छे थे। अगर कोई स्टूडेंट मैथ्स में वीक रहा है, या बहुत से स्टूडेंट इंग्लिश में वीक होते हैं जैसे यूपी बोर्ड वाले, तो उनको जो है थोड़ा सा और टाइम लग सकता है, 6 मंथ एक्स्ट्रा लग सकते हैं। बट अगेन 1 साल जो है आप डेडिकेटेडली काम इसमें मेहनत करते हैं, तो आप इसमें आसानी से क्रैक कर सकते हैं जॉब को। लेकिन यहाँ पर ये नोट करना जरूरी है कि 5-6 घंटे ही अगर पढ़ेंगे 6 महीने तक तो सेलेक्ट हो जाने के चांस है पूरा। लेकिन ये कि बॉटम पे आएंगे और 12,000 8,000 में 8,000वें नंबर पर आना है या पहले नंबर पर आना है। अगर पहले नंबर पे आना है, टॉप 10 में आना है, तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा दूर। जी सर, हाँ, ये इसमें एडिट करना होगा स्लाइड में। ठीक है, फाइन। Next question is, this is for mainly urban student, like they have so many options in private sector as well as so why should they choose government job? So you can go through this slide, and there are various reasons: job security, work life balance, and there are so many reasons for this. अगर कोई स्टूडेंट एसएससी सीजीएल की तैयारी करता है तो उसकी तैयारी जो है बाकी एग्जाम्स की भी हो जाती है, क्योंकि जो उसका सिलेबस है 80% सिलेबस बाकी एग्जाम से मैच करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की, तो आपकी तैयारी जो है राज्यसभा की भी हो जाती है। राज्यसभा में एग्जाम उसका वेरियस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन निकलता है एवरी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। डीएमआरसी में निकलती हैं वो काफी सारी पोस्ट, स्टेशन कंट्रोलर की निकलती हैं, असिस्टेंट मैनेजर की निकलती हैं, आईबी के लिए निकलती हैं, रेलवे में निकलती हैं, स्टेट पुलिस एग्जाम्स की होती हैं। तो और इसके अलावा और भी बहुत सारी जो वैकेंसीज होती हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, और आपकी तैयारी साथ साथ उनकी भी हो जाती है, क्योंकि सिलेबस जो है अराउंड 80% सेम होता है बाकी पोस्ट के लिए भी। ये स्टेट पुलिस एग्जाम कैसे सेलेक्ट होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए? स्टेट पुलिस एग्जाम में जो सब इंस्पेक्टर एग्जाम होता है, वो इसमें उसका सिलेबस और इसका सिलेबस सेम है। एग्जैक्टली सेम सिलेबस है सर। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक इज इफ you are living in rural area or you can't afford fees for coaching, so how can you prepare for the exam for this SSC CGL? So step 1 is just check the syllabus. Step 2 is see previous question papers of both pre and mains of last at least 5 years. So you can get various books, so I will cover the books in the last slide. Step 3 is try to solve as much as question papers as you can. So step 4 is read the recommended books. This is very important. So don't read other books which are not recommended at all. कुछ स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि वो जैसे इसमें 700 मार्क्स में से जो रीजनिंग जीएस आती है वो सिर्फ 50 मार्क्स की आती है, और वो जीएस पे इतना फोकस करते हैं कि वो ल्यूसेंट खरीदते हैं, पढ़ते हैं। तो ल्यूसेंट जो है वो एसएससी सीजीएल के लिए बिल्कुल नहीं है। आपको ल्यूसेंट नहीं पढ़नी है अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, या सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं। आपको ल्यूसेंट को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है।
मैं लास्ट स्लाइड में कवर करूंगा कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। तो स्टेप 5 में जो है, अगर आपने 3 महीने 3 to 5 और 6 मंथ तक आपने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर ली है, तो फिर आपको टीयर 2 के मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। पर ये आप ये स्टेप 6 और 7 को जो है फॉलो कीजिए। आपके जो बेसिक्स हैं वो काफी क्लियर हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी। तो अब ये स्लाइड है रिकमेंडेड बुक्स। तो इसमें जो इंग्लिश है वो आपको प्लिन टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह ये पढ़नी है, अगर आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं या सीजीएल की या सीएचएसएल की, तीनों के लिए सेम रिकमेंडेड बुक है। इंग्लिश के लिए जो है दूसरी बुक है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी, आपको यही रेफर करनी है। उसके बाद थर्ड बुक है जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं अजय कुमार सिंह के एमबी पब्लिकेशन के, आपको ये रेफर करनी है। इन 3 बुक के अलावा इंग्लिश में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। बहुत सारी बुक है मार्केट में, आप जो है बाकी बुक से जो है ये मैंने जो ये स्लाइड कवर की है, दिस इज फॉर हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी सीजीएल विदाउट कोचिंग। तो उसके लिए यू कैन रेफर दीज बुक्स फॉर इंग्लिश। फॉर मैथ्स यू कैन रेफर राकेश यादव क्लास नोट्स एंड एसएससी मैथमेटिक्स बाय राकेश यादव। For GS, I have mentioned these three things, and for reasoning also. For reasoning, RS Agarwal is sufficient. Don't go with any other book. So these are the recommended books, and the most important thing is in SSC CGL आप जो है 10 अलग अलग किताबें पढ़ने की बजाय ये जो किताबें दी गई हैं इनको आप 10 बार पढ़नी है आपको। अगर आपने एक बार पढ़ ली है तो आप उसको दोबारा रिवाइज कीजिए, दोबारा पढ़ ली है तो तिबारा रिवाइज कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं, वो अलग अलग बुक से रेफर करते हैं और लास्ट में जब एग्जाम का टाइम आता है तो दे आर नॉट एबल टू रिवाइज। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको आप रेफर कर सकते हैं। दीज आर मेंशन्ड इन द स्लाइड। इंग्लिश, फॉर इंग्लिश स्पार्क एडुकॉर बाय सुमित भारद्वाज, फॉर मैथ्स एप्ट्रिक्स ई क्लासेस बाय रामो सर, माय पाठशाला फॉर बेसिक टू मॉडरेट लेवल and even coaching for basic to moderate level. You can refer these YouTube channels. So be the change you want to see in the world by Mahatma Gandhi ji. So this is the end of the slide for SSC CGL. Now we will go to another slide. Now SSC CHSL staff selection combined higher secondary level. तो ये जो है सिर्फ 12th क्लास स्टूडेंट के लिए एलिजिबिलिटी है। इसमें जिन्होंने 12th पास कर ली है वो स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है अलग अलग पोस्ट के लिए एग्जाम होता है। फॉर एग्जाम्पल लोअर डिविजनल क्लर्क LDC, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट JSA in different ministries, postal department and data entry operator in various ministries who are eligible to apply. So the minimum eligibility requirement is 12th pass and the age limit for general student is 18 to 27 years. So this is the relaxation in age for SSC CHSL. So you can go through this slide. There is no passing percentage criteria in SSC CHSL also. Just you need to be pass in the exam. अगर आप कॉलेज के या स्कूल के लास्ट सेमेस्टर में हैं, आप 12th में हैं, तो आप उसके तब भी फॉर्म भर सकते हैं अगर उसी साल जो है नोटिफिकेशन अनाउंस हुआ है जॉब का। तो इसमें भी जो है वैकेंसीज काफी आती हैं, हर साल अराउंड 5 to 6,000 वैकेंसीज आती हैं हर साल। तो इसमें भी काफी चांसेस हैं। जो स्टूडेंट जल्दी जॉब करना चाहते हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आफ्टर 12th, तो ये वो स्टूडेंट CHSL ज्वाइन कर सकते हैं। एक इसमें अच्छी बात यह है कि CHSL ज्वाइन करने के बाद आप CGL की भी साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। और
CHSL का और CGL का दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है होता है, कोई सिलेबस में डिफरेंस नहीं है। ये वैकेंसी जो है हर साल आती हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि इसमें सिलेबस तो सेम रहता है, थोड़ा सा पेपर का पैटर्न डिफरेंट होता है। तो टीयर 1 में जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, 25 रीजनिंग, 25 क्वेश्चन इंग्लिश, 25 जीएस और 25 मैथ्स। और एक पेपर टीयर 2 होता है, वो डिस्क्रिप्टिव होता है, उसमें एक एसे आता है और एक लेटर लिखने को आता है। वो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में चॉइस होती है, आप इंग्लिश में देना चाहें इंग्लिश में दे सकते हैं, हिंदी में देना चाहें हिंदी में दे सकते हैं। और एक टीयर 3 पेपर होता है, उसमें सिर्फ टाइपिंग आपकी चेक की जाती है। तो अलग अलग कुछ मिनिस्ट्रीज में टाइपिंग 50 वर्ड्स पर मिनट मांगते हैं, कुछ में 35 वर्ड्स पर मिनट मांगते हैं, कुछ में 27 वर्ड्स पर मिनट मांगते हैं। तो आपको जो टाइपिंग की जो प्रैक्टिस है 1 साल पहले से ही कर देनी चाहिए। रोज अगर आप डेली आधा घंटा प्रैक्टिस करेंगे, कंप्यूटर पर बैठ के टाइप करके प्रैक्टिस करेंगे, तो एग्जाम के तक पहुंचने तक आपके 50 वर्ड्स पर मिनट आराम से प्रैक्टिस पहुंच जाएगी। इसमें जो CHSL है ये क्लरिकल जॉब के लिए होता है अलग अलग मिनिस्ट्रीज में। इसमें अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं 10th तक के और आप 12th में हैं या 12th पास कर चुके हैं, तो 6 महीने 8 महीने अराउंड 6 से 8 महीने के बीच में आप 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं, देयर इनफ फॉर यू टू क्रैक दिस एग्जाम। प्राइवेट जॉब से बेटर है कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं CHSL में, उसके बहुत सारे फायदे हैं, वो इस स्लाइड में कवर किए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। आप अगर कोचिंग के बिना कोचिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें ये स्टेप्स दिए गए हैं, आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपको कोचिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें जो CGL वाली स्लाइड में जो स्टेप्स कवर किए थे सेम स्टेप्स हैं, बस इसमें एक स्टेप अलग है। इसमें जो स्टेप 5 है, आप जो है जैसी तैयारी करना शुरू करते हैं, आपको जो है शुरू से ही कंप्यूटर पे बैठ के टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी होती है। और अगर आप थोड़ा सा आधे घंटे डेली देंगे कम से कम, तो 50 वर्ड्स पर मिनट आपकी ये जो टाइपिंग स्पीड है आराम से पहुंच जाएगी। अगेन इसमें जो बुक्स हैं वो सेम है, लाइक CGL इंग्लिश के लिए नीतू सिंह है, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश के लिए SP बख्शी है, और SSC के जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं वो अजय कुमार सिंह के हैं MB पब्लिकेशन के। GS के लिए सेम है, मैथ्स के लिए राकेश यादव क्लास नोट्स, वो CGL में भी आपको पढ़ने थे, यहाँ भी सेम है। SSC जो मैथमेटिक्स के जो राकेश यादव के हैं वो सेम है। रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल है। अगेन CHS के जो स्टूडेंट हैं उनको ल्यूसेंट को बिल्कुल टच नहीं करना है, बिल्कुल नहीं उसको करना खरीदना है। CHSL के लिए अगर आप UPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो बात अलग है, उसके लिए आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 50 नंबर की GS आती है, तो 50 नंबर की GS के लिए आपको उससे ज्यादा बाकी सेक्शन पे फोकस करना होता है, मैथ्स और इंग्लिश पे। ये YouTube चैनल्स हैं, आप इनको रेफर कर सकते हैं, आप घर से बैठ के पढ़ाई करना चाहते हैं तो बिना कोचिंग के। Be the change you want to see in the world by Mahatma Gandhi. So this is the end of the slide. Thank you very much. Jazakallah.